السلام علیکم. بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رؤيا أمي وبشارة عيسى وثمرة دعوة أبي إبراهيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، ربیع الاول کی نسبت سے اگلی جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہوا تھا. آپ کی ایک ولادت جسمانی ہے جس پر بحث ہو چکی. آپ کی دوسری ولادت روحانی ہے جہاں آپ کی عمر شریف کے 40 سال 6 مہینے پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مکہ مکرمہ میں غار ہیرا کی خلوتوں سے فراغت پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نصیب ہوئی. یہ آپ کی ولادت روحانی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یعنی آپ بحیثیت نبی اور رسول کے مبعوث ہوئے. یہ آپ کی ولادت روحانی ہے. ولادت جسمانی میں امت کے لیے کوئی عمل کا پیغام نہیں، اور ولادت روحانی میں امت کے لیے عمل کا پیغام ہے. اور یہیں سے اصل مقصد نبوت کا آغاز اور تعلیمات نبوت کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی قوم یا فرد بلا اور مصائب کی شکار ہوتی ہے اور دلوں کی پریشانیاں اور جسمانی پریشانیاں اس حد تک انسان پر مصیبتیں توڑتی ہے کہ بظاہر اس سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی. قلبی پریشانیاں اور جسمانی پریشانیاں، اس سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں. تب اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم کھایا اور دونوں قسم کی مصیبتوں سے قوموں کو نکالا ہے. اور اس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 شرط پر 3 وعدے فرمائے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ اور نیک اعمال والوں کے ساتھ
ताकीद दर ताकीद ये वादा फरमाया है, ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल लदीन मिन क़ब्लिहिम। खिलाफत, नियाबत, हुकूमत, बादशाहत, निजाम सल्तनत तुम्हारे हवाले रहेगा, जैसा कि तुमसे पहले लोगों के साथ अल्लाह ताला का ये वादा रहा। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तदा लहुम, और अल्लाह तुम्हें पसंदीदा दीन में कुव्वत और ताकत अता कर देगा, यानी इस्लाम में तुम्हें कुव्वत, गलबा, फतह और ताकत अता फरमा देगा। और वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमनन, जो खौफ के हालात हैं चारों तरफ इस्लाम और मुसलमानों के लिए खौफ की खबरें हम सुनते हैं, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह इस खौफ को अमन में बदलेगा। 3 वादे हुए, यअबुदूननी वला युशरिकून बी शैआ, 2 शर्तें हैं, मुवाहिद अल्लाह की इबादत तौहीद वालों के साथ और अल्लाह के नेक बंदों के साथ, शिर्क कुफ्र से तौबा, अल्लाह की इबादत पर गामजन और इस्तिकामत के साथ 3 वादे हैं। और अगर तौबा और इस्तिगफार के बाद 3 वादे पूरे हो गए और फिर अगर 2 मर्तबा कुफ्र किया, नाशुक्री की, एहसान फरामोशी की, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अल्लाह का अज़ाब फिर फासिकों के साथ होगा। ये अल्लाह की सुन्नत रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 569 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें लोग नबूवत से महरूब रहे। हजरत ईसा के बाद से लेकर आका तक में 569 साल ऐसे गुजरे हैं कि पूरी कायनात नबूवत और रिसालत से खाली रही। आप खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन और आपसे पहला आखिरी नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम था, जो बनु इसराइल में से नहीं है। 10 नबी बनु इसराइल में से नहीं है, इनमें के एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। अगर हजरत ईसा को बनु इसराइल का पैगंबर मान ले तो हजरत ईसा का बाप लाजिम आएगा, और जब हजरत ईसा के लिए बाप मान लिया जाए तो कुरान की आयत का इनकार हो जाएगा, इसलिए कि कुरान ने ईसा इब्ने मरियम कहा है। हजरत ईसा का कोई बाप नहीं था, जैसे कि ईसाई लोग मानते हैं कि यूसुफ इब्ने हारान या हजरत ईसा का बाप था। ये गलत है। बगैर बाप के अल्लाह ने मरियम के पेट से कबाले कुदरत से हजरत ईसा को पैदा किया था, जिनके 2 नाम कुरान में मज़कूर हैं, ईसा इब्ने मरियम, मसीह इब्ने मरियम। एक में मसीह फरमाया, एक में ईसा फरमाया। 569 साल के बाद इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत मक्का मुकर्रमा में हुई, जिस पर तफसीली बहस पिछली जुमा में हो चुकी। जब आपकी उम्र शरीफ 40 साल 6 महीने हो गई, गारे हिरा की खलवतों का निसाब पूरा हुआ, आपको नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया। किस कौम में? अरब में, जो उम्मी थी, जो अनपढ़ थी, जिस कौम का हाल तमद्दुनी इंतहाई खतरनाक था, जिस कौम का तहजीबी हाल बिल्कुल खत्म था, और जिस कौम के अखलाक दुनिया में बिल्कुल गिर चुके थे। दौरे जाहिलियत का नक्शा तारीख की किताबों में लिखा है। इस दौर को, इस कौम को जोहलाए अरब कहते थे, और उस जमाने को जाहिलियत का जमाना कहा जाता था। कौम को जोहला कहते थे, जोहलाए अरब, अरब के अनपढ़, अरब के बद्दू, अरब के वो हजरात जो इंसानियत और तहजीब नाम की कोई चीज नहीं रखते थे।
जोहलाए अरब थे वो, और उस जमाने को जमाना जाहिलियत के नाम से याद किया जाता था। जरा उस कौम के हालात क्या थे हम देखते हैं। उस कौम के हालात ये थे कि जब बच्चा पैदा होता था तो इसके हलक के अंदर शराब टपकाई जाती थी, और जिसके पास शराब जितनी जूनी इतना वो मालदार शुमार किया जाता था। इस कौम की अखलाकी गिरावट ये थी, मजहबी गिरावट ये कि सब कुछ को पहचानते थे लेकिन अल्लाह को नहीं पहचानते थे। खुद मताफ में 365 बुत रखे थे और खानाए काबा के अंदर 2 बड़े बुत रखे थे। अल्लाह कितना बड़ा हलीम, कितना बड़ा हलीम कि खुदा का वो घर जो लोगों को अल्लाह की इबादत के वास्ते सबसे पहले बनाया गया, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन, जिसको अल्लाह बाबरकत कहे, जिसको अल्लाह मंबए रुश्द हिदायत फरमाए, उस घर में इंसानों के हाथ तराशे हुए 2 बड़े बूत, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान हलीमी देखिए, अल्लाह ने चलाया इसको। 365 बूत मताफ में रखे हुए थे। इन सब के बावजूद तवाफ के दरमियान में 365 बूतों की इबादत करते जाते थे, लेकिन दिलों का सुकून नसीब नहीं होता था। आज हम जुमा की नमाज अदा करते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, नमाज से दिलों में इत्मीनान नसीब होता है, जिक्र से दिलों में इत्मीनान नसीब होता है, तिलावत कुरान से दिलों में इत्मीनान नसीब होता है, रमजान के रोजों से दिलों में इत्मीनान नसीब होता है, फरीदाए हज की अदायगी से दिलों में इत्मीनान नसीब होता है। मताफ में 365 बूत की इबादत हो रही है, लेकिन दिलों में इत्मीनान नाम की कोई चीज नहीं। तरीका गलत था, ये जहालत थी, ये अज्ञानता थी। अपने हाथ के तराशे हुए पत्थर जितने कंकर थे इतने शंकर थे। पूजने वालों की तादाद कम थी और माबूदों की तादाद बहुत ज्यादा थी। सफर का अल्लाह अलग, हजर का अल्लाह अलग। सफर में साथ में पत्थर ले जाते थे खुशनुमा, और उसकी पूजा करते थे कि कहीं न मिला तो हम क्या करेंगे। जिनका सफर का माबूद अलग, जिनका हजर का माबूद अलग। मताफ में 365 बूत, यह उस कौम की जहालत, यह उस कौम की अज्ञानता, यह उस कौम का अनपढ़ होना, ये लिखा गया है। अखलाक की गिरावट कैसी थी? शराब। दूसरे नंबर में जीना इस कौम में आम था। निकाह के नाम से भी जीना और बकसरत जीना। निकाह के नाम से जीना क्या होता है? कोई औरत किसी बदसूरत शौहर के निकाह में हो, निकाह है लेकिन उसका शौहर बदसूरत है, तो उसको कानूनन ये हक था, उसको कानूनन ये हक था कि किसी खूबसूरत मर्द से उसके पास जाकर के वो सो सकती है, और अगर औलाद हो गई तो उसके काले बदसूरत शौहर की शुमार होती थी। ये जमाना जाहिलियत में निकाह के नाम से जीना का रिवाज था। और आम जीना जो थे वो तो अलग। किसी मसले में लड़ाई हो गई, 50-50, 100 बरस तक लड़ाई बंद नहीं होती थी। खानदानों के खानदान तबाह बर्बाद हो जाते थे, लेकिन मरते मरते वसीयत कर जाते थे कि खबरदार लड़ाई बंद मत करना। ऐसी अज्ञान कौम अपनी पेट की सगी औलाद जमीन में जिंदा दफन कर देते थे। 2 वजह से औलाद का कत्ल करते थे। औलाद में लड़की पैदा हो गई तो बाप ये समझता था कि मेरे घर मंगेतर बन करके कोई दामाद बनकर मेरी बेटी का रिश्ता लेकर के मेरे घर आवे, और कोई अजनबी मर्द मेरे घर में दाखिल हो, इससे अरब को आर आती थी और बेटी पैदा होते ही जमीन में जिंदा दफना दी जाती थी। ठीक इसी तरह अगर कोई यूं समझे कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है, तो 7 तारीख को
तालाना के ढाबा में अभी हुआ, अभी जिंदा दाखला। एक बाप ने अपनी सगी बेटी को कत्ल किया, उसके कत्ल की दास्तान आपने पढ़ ली, मैं आखिर में जिक्र करूंगा। जाहिलियत, अज्ञानता आज भी वही है जो अरबों में थी। अच्छा, हिंदू की बात बयान करना तो ये तो मुशरिकों की बात बयान हो रही है। वो हिंदू कहलाते थे, ये हिंदू कहलाते हैं, वो मुशरिक कहलाते थे। फर्क कितना है, ये हिंदू कहलाते हैं, वो मुशरिक कहलाते थे। दोनों के अकाइद, दोनों की मान्यता सेम है। इनके भी जितने भी मंदिर हैं और इनकी पूजा पाठ के जो तरीके हैं, वही मंदिर और पूजा पाठ के तरीके अरबों के थे। ये हालात इनके थे। अखलाकी गिरावट, मजहबी गिरावट, 100 साल तक इनमें लड़ाइयां बंद नहीं होती थी। दूसरी वजह कत्ल की, एक आदमी के 4 बेटे हैं, कमाता है, 2 का पूरा होता है, 2 का पूरा नहीं होता, तो 2 बेटे को इनमें से जो बाप चाहता जिंदा कत्ल कर देता था। कुरान में है, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। अगर कुरान बयान न करता तो कायनात इसको मानने के लिए तैयार न थी। बाप यूं कहता था कि 4 बेटों का गुजर बसर मुझसे मुश्किल है, लिहाजा 2 को कत्ल कर देता और 2 को जिंदा रख छोड़ता था। और कुरान ने इस वाक़ये की तस्वीर कशी फरमाई, ला तक़्तुलू औलादकुम नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा। अल्लाह ताला ने इस सिसकती हुई, तड़पती हुई इंसानियत पर रहम खाया। एक तरफ से यूरोप कैसर की मार, दूसरी तरफ से किसरा की यलगार, दुनिया की मुहद्दब तहजीब याफ्ता कौमें अरब के बद्दुओं पर हमला आवर होती थी। कभी फारस हमला करता, कभी किसरा हमला करता, और इस तरह ये कौम मजहबी एतबार से, समाजी एतबार से और अखलाकी एतबार से सफाए हस्ती पर सबसे मजलूम कौम थी। अल्लाह ताला ने रहम खाया। इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, हम सब के आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए और आपने इस अरब के बद्दुओं को अल्लाह की तौहीद की दावत दी। कुरान ने पहला वादा किया, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लनस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह के कमाल कुदरत देखिए, जो इंसान कहीं चलने के काबिल नहीं, जो कौम किसी कौम से आंख लगाने के काबिल नहीं, जो जमाना बिल्कुल कायनात में भूला दिया गया था, नबी आखिरुज़्ज़मा, कुल कायनात का खुलासा हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां टेक्नोलॉजी नहीं आई, यहां साइंस नहीं आई, यहां बड़े बड़े अकला हुक्मा उदमा नहीं है। कौन आया? इंसानियत का मसीहा, कुल कायनात का खुलासा हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अरब के इन बद्दुओं को 365 खुदा की हकीकत समझाई और एक अल्लाह की तौहीद उनके दिलों में रासिक फरमाई। दावत तौहीद दी इनको, मेहनत हुई, कोशिश हुई। 13 साल तक मक्का की धरती में रह करके आका ने मेहनत की। इस मेहनत के नतीजे में अपने बेगाने बने। आका को सहाबे अबी तालिब में 3 साल कैद व बंद की जिंदगी गुजारनी पड़ी। आका के परागंदा परवानों को यानी सहाबाए किराम को मक्के से हबशा की हिजरत करनी पड़ी, हबशा से फिर वापस मक्के, मक्के से फिर वापस मदीना मुनव्वरा। आग के तंदूर में सहाबा डाले गए। अरब के तपती हुई इंतहाई खतरनाक संगलाक चट्टानों पर इनको घसीटा गया, जंजीरों में जकड़ा गया। इंतहाई खतरनाक मसाइब और मुश्किलात और भारी भारी तकलीफ दे चीजें सहाबाए किराम पर डाली गई। 13 साल मुसलसल
बर्दाश्त का माहौल, जैसे अभी हिंदुस्तान के हालात हैं। बिल्कुल मक्की दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है। अगर आप मक्की दौर से तफसीली जायजा ले, मक्की दौर का, आका के ऐलान नबूवत से लेकर हिजरत तक का, और तफसील से मुताला करें इनका, सीरत की किताबों में, तारीख की किताबों में, तो आपको पता चलेगा कि अभी मुल्क हिंदुस्तान वापस वो जाहिलियत की दौर की याद ताजा कराता है। जितने भी हालात हैं, या तो वो दलितों पर, या तो वो क्रिश्चियन पर, या तो वो मुसलमान पर। दलित और क्रिश्चियन में इकाई है, लेकिन मुसलमानों में कोई एकता नहीं। दलित और ईसाई अपने एकता की बुनियाद पर कदरे एक खास कौम के मजालिम से नजात में, जिस मुल्क का पीएम, प्राइम मिनिस्टर, वड़ा प्रधान डंकी की चोट, पेशकदमी की जगह में, सरकारी जगह में किसी मजार के टूटने पर और तोड़ देने पर महकमा को शाबाशी देता हो, इस कौम, इस मुल्क की जिल्लत, इंतहाई खतरा इस मुल्क का कितना। और बबांगे दोहल पार्लियामेंट का मेंबर मुसलमानों को खत्म के लिए 10 मिनट का चैलेंज मारता हो कि 10 मिनट की बात है, इनसे निमटना कोई बड़ी बात नहीं। इसी भारत की भूमि पर जिसमें हम अभी सुकून के सांस ले रहे हैं, मक्की दौर इंतहाई खतरनाक मजालिम के पहाड़ मुसलमान पर तोड़े जा रहे हैं। ये हालात से अभी मुसलमान गुजर रहा है। कभी किसी वाक़ये को चुटनी नक्शी कह दिया जाता है, कभी किसी वाक़ये को आरएसएस की तरफ मंसूब किया जाता है, कभी किसी वाक़ये को हिंदुत्व की तरफ मंसूब किया जाता है, लेकिन कुदरत की अजीब करिश्मा शादी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ अपने मुखलिसीन बंदों के नतीजे में कैसे कैसे हालात रूनुमा कर रहा है। पूरा मक्की दौर का जायजा लो आप। बिलाल, अम्मार, सोहेब, सलमान, सुमैया, जन्नीरा, इनकी जिंदगी उठाकर आप देखो, क्या क्या मुसीबत के पहाड़ तोड़े गए। सुमैया पर जो जुल्म हुआ, हिंदुस्तान में मुसलमान बहनों पर जो मजालिम होते हैं, जरा सुमैया की याद ताजा करो। जन्नीरा की आंखों में अबू जहल घुसता मार करके डोरा बाहर निकाल देता है, वो जन्नीरा की कुर्बानी याद करो। मक्की दौर में 13 साल में सहाबा आग के खंदक में डाले गए। बिलाल इंतहाई खतरनाक चट्टान पर सुलाया गया और सीने पर भारी चट्टान रखी गई और जंजीरों में बांध करके सख्त चिकने पत्थर पर खींचा गया। और ये मसाइब और मुश्किलात मुसलसल सलमान के साथ, एक तरफ मसाजिद, एक तरफ मुसलमान सरबराहों के घरों पर बुलडोजर का फिरा देना। हिंदुस्तान बनने से लेकर आज तक की तारीख में कोई ऐसा हिंदुस्तान का वजीर आजम नहीं आया है जिसने इस कदर मजालिम को रवा रखा हो। ये पहला वो जालिम खूनी पंजा है जो इंसानियत के शहर और इंसानियत की आबादी और इंसानियत का वो अजीम घर, जो बड़ी मुश्किलात, मेहनत और मसाइब के बाद एक जिसकी छत तैयार हुई, उस छत को बिला किसी तहकीक के और बिला किसी सबूत के परछी उड़ा दिए जाते हैं। जिनका वोट जहां गया है उनको वो खमियाजा भुगतना पड़ता है और पड़ेगा, जिससे ये सारी बुराइयां वजूद में आती है। बहुत इबरत का मकाम है, बहुत सोचने के काबिल है। 13 साल बर्दाश्त किया। इस वक्त के मौजूदा हालात में मक्की दौर का मुताला जरूरी है। सहाबा कैसे निमटे, पैगंबर ने क्या हिकमतें और मसलिहतें इस्तेमाल फरमाई, जुबान पर कैसा ताला लगा, सहाबा को सब्र, इस्तक़लाल और हिम्मत पर कैसा उभारा, इसके लिए इल्म की जरूरत है। इसमें राजकारण काम नहीं देगा, इसमें पार्टियां काम नहीं आएगी, इसमें सिर्फ इल्म आखिरत काम आएगा।
वरना अभी की दास्तान है परसों की। आंध्र प्रदेश में हिल्लूर में 10,000 मुसलमानों के मकानात वो हैं जहां अभी मस्तूरात की जमात बंबई की काम करती है, हर घर पर मूर्ति लगी हुई है और मुसलमान जो है इस्लाम से फिर चुके हैं। ये तो उन देहातों में जहां मस्जिदें हैं और जहां मस्जिद नहीं उनके हालात तो अलग। 40 घर पूरे कादियानी हो गए, कई लोग ईसाई हो गए, हर घर का हाल बिगड़ा हुआ है। बाप मुसलमान है, बेटा ईसाई है, बीवी मुसलमान है और शोहर जो है का हिंदू है। इन हालात में इंसानियत सिसक रही है, एक मेहनत हो रही है, उस मेहनत के नतीजे में एक दिन में पकड़ पकड़ कर 50-50, 100 को वापस कलमा पढ़ा रहे हैं और इनको इस्लाम के अंदर दाखिल कर रहे हैं। हिंदुस्तान की बात हो रही है। अभी हम उनके मजालिम को याद करते हैं, लेकिन हमारे हालात ये हैं, जो मुसलमान कहलाने वाली कौम है, हर घर के दाखिले के वक्त मेन दरवाजे पर मूर्ति रखी हुई है, नाम मुसलमान है, ईद भी मनाता है, गोश्त मछली भी खाता है, बकरा ईद भी मनाता है, मुहर्रम भी मनाता है, जश्न ईद मिलादुन नबी भी मनाता है। लेकिन इसके साथ साथ इंसानियत के हालात ये हैं। अल्लाह ने रहम करम फरमाया, कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब क्या आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। आका ने फरमाया, जिसकी 3 बेटियां हो या 2 बेटी हो या 1 बेटी हो, जिसकी 3 बहनें हो या 2 बहन हो या 1 बहन हो, वो बाप या भाई इनकी तरबियत करे, इनकी कफालत करे और जवानी में दीनदार मर्द से निकाह करा दे। मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत दिलाने का जिम्मेदार हूं। आका ने फरमाया, जिस घर में पहली बेटी पैदा हो गई, अल्लाह उस घर में रहमत का दरवाजा खोलता है, अल्लाह उस घर में बरकत का दरवाजा खोलता है। उस घर में माँ बाप के नामाए अमाल में रोजाना नेकी लिखी जाती है। ये सिसकती बेटी थी, तड़पती हुई औलाद, माँ का लफ्त जिगर, बाप का नूर नजर जमीन में जिंदा दफना दिया जाता था। वो कौन सी ताकत थी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसने सिसकती हुई बेटी को जीवन का हक दिया, जीने का अधिकार दिया। आज कहते हैं कि इस्लाम महिलाओं को हुकूक नहीं देता है। अरे डूब मरो नालायको, तुम्हें हिस्ट्री में ये कहने का हक ही हासिल नहीं। हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तुम्हारा ही तो मजहब दुनिया में था, तुम्हारी तरह तो बुत की पूजा होती थी, तुम्हारी तरह तो जो है बुतों के आगे सरनिगू होते थे, लेकिन इन सब के बावजूद तुम बेटियों को जमीन में जिंदा दफना देते थे। मैंने कल एक एसपी से बात की और मैंने कहा, साहब इसकी सजा तो ये है, एक मर्तबा कोशिश करके जिस बाप ने अपनी 14 साल की बेटी को खत्म कर दिया, एक मर्तबा कोशिश करके सरेआम इस्लामी नुक्ता-ए नजर से कत्ल का कानून नाफिज किया जाए और उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। तो मैंने कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बना कर कहता हूं, ये धरती पूरी पाक भी हो जाएगी, साफ भी हो जाएगी और जालिम को बदला भी मिल जाएगा। क्या किया उस बाप ने? अपनी 14 साल की अकेली लगते जिगर बेटी को त्रांतिक विधियां करके लड़का हासिल करने की गर्ज से बेटी को यहां ले आया सूरत से, बहुत बड़ी जमीन का मालिक भी, अब तक की पुलिस रिपोर्ट ही, और उसको ले गया खेत में जंगल की तरफ जहां शेरडी का खेत था, और बेटी को ले जा करके पहने हुए पुराने कपड़ों में, मां उसकी सूरत है, बाप के साथ यहां ये आई, ले गया उसको बाप और बड़ा अब्बा, और ले जाकर के पहले दिन उस पर त्रांतिक विधियां की, सारी चीजें आग रोशन की, और आग रोशन करके बेटी को बिल्कुल आंख के पास ऐसा खड़ा किया कि जिसकी वजह से पूरे जिस्म पर फलफोले हो गए। उसके बाद इस बाप ने और बड़े अब्बा ने इसके बाल पकड़े और उसको लकड़ी से बांध दिए, 2 तरफ कुर्सी रखी और दोनों पैर फैला करके बेटी को उस पर बिठा दिया। फिर वायर से
और लकड़े से जितनी ताकत थी दोनों ने बेटी को मारा। और फिर उसके बाद बरहीना जिस्म इसको छोड़ करके चले गए। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, उसके जिस्म में कीड़े पैदा हो गए। 3 दिन 3 रात बकायदे हयात रही, लेकिन न 3 दिन 3 रात कभी बड़ा अब्बा आता कर देखता कि मर गई है कि जिंदा है, कभी बाप आकर के देखता कि मर गई है कि जिंदा है। और 3 दिन के बाद जब वो गिर गई कुर्सी पर और उसकी नाश को कीड़े पड़ गए, उसके बाद उन्होंने अंतिम विधियां पुराने कपड़ों के अंदर की। ये इंसानियत आज भी सिसकती हुई बेटी के साथ क्या मामला करती। फूल जैसी बेटी 14 साल की, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाह ने हमें इस्लाम अता फरमाए। अरब के बद्दुओं की वो दास्तानें जो हम किताबों में पढ़ते हैं, जोहलाए अरब के हालात, ये ज़हनीयत के लोग आज दुनिया में मौजूद है। कोई ये न समझे कि हिंदू की बेटी है, वो भी अरब के बद्दू बुत के पुजारी थे, ये भी हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम बुत की पूजा करते हैं। दोनों सेम है अकाईद के एतबार से। ईमान दिलों में नरमी पैदा करता है, ईमान दिलों में राहत पैदा करता है, ईमान दिलों में तमानियत पैदा करता है, ईमान जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने पर मजलूम की मदद के लिए खड़ा करता है। और ये अनपढ़ लोगों की बात नहीं, पढ़ा लिखा पटेल समाज, कोई दलित नहीं, कोई आदिवासी नहीं, कोई ओबीसी नहीं, लेकिन मैंने कहा तुफ है तुम्हारे पढ़े हुए समाज पर। उसी समाज का ये एसपी था, पढ़े हुए तुम्हारे समाज पर तुफ है, कोई एक आवाज ऊंची करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? सामने इलेक्शन है। अल्लाह अकबर। ये हालात है इंसानियत, हमसे ज्यादा दूर नहीं। ये गांव आप लोगों में से अक्सर आंबे का काम करने वाले देखा है, हमसे इतना दूर नहीं, करीब में है। इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब तांत्रिक विधियां मुसलमानों में क्या होती है, अब उसकी दास्तानें बयान करूं। कहां कहां मंदिरों में मुसलमान बेटियां जा रही है, कितने कितने बापू ऐसे हैं जिनके पास लाइनें लगती है, और कितनी कितनी तांत्रिक विधियाएं मांगरोल में हो रही है, मुसलमान कर रहे हैं। मैं दर्जनों नाम गिना सकता हूं। और मुसलमान बेटियां कहां रात को 12 बजे मंदिरों के पास खड़ी है, और कुछ बरहीना जिस्म भी देखी गई है। हालात अबतर है। पूरे ज़खीरा इस्लाम में, पूरे खुलाफाए कुरान और सुन्नत में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ज वाक़या है, उसके अलावा कहीं नहीं। सहाबा की एक जमात गई हुई थी, बहुत भूखे थे, प्यास भी बहुत सता रही थी। गांव वालों से मेहमानी मांगी, गांव वालों ने मेहमानी नहीं दी, बाहर जंगल के किनारे पड़ाव डाल दिए। भूख आंखों में तौरे लाती है, पेट कमर से लग गए हैं, न नींद न सुकून न चैन। इसीलिए आका फरमाते हैं फकीरी आदमी को काफिर बना देती है। खैर, उस कौम के सरदार को बिच्छू ने डस लिया। अब बहुत इलाज मुआलजा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। फिक्र हुई तो कहा कुछ परागंदा परवाने बद्दू आए हैं जो बाहर ठहरे हुए हैं, जरा उनमें कोई अगर विधिया जानता हो तो उनसे इलाज कराए। गए, साहबाए किराम की जमात के अमीर वहां तशरीफ ले गए, सूरे फातिहा 7 मरतबा पढ़ करके दम कर दिया। उसको सांप या बिच्छू का डसा हुआ अच्छा हो गया, सेहत याब हो गए। अब उन्होंने हदिये में चंद बकरियां दी थी, और आका ने वो बकरियां साहबाए किराम ऐसे भूख की बेताबी के आलम में भी पूछा कि जब तक नबी से मसला नहीं पूछ लेंगे तब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी थी। पूरा एक वाक़या जुज़इया है, इसके अलावा कुछ नहीं। इलाज सिर्फ सूरे फातिहा से साबित, इलाज सिर्फ मसनून दुआओं से साबित, उसके अलावा कोई हैसियत नहीं। उतारना और फिर झंडियां
गाड़ना और अजीब अजीब किस्म के नारियल उतारना, ये इस्लाम में है ही नहीं। दाने खिलवाना ठीक है, अगर किसी पर जादू का असर हो गया, हमारे नबी पर भी लबीद इब्न आसम यहूदी की 2 बेटियों ने जादू किया था। अल्लाह ने सूरे फलक और सूरे नास उतारी, यही जादू का इलाज है। शयातीन और जिन्नात से हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी पढ़कर दोनों हाथ बेगी करके जोर से ताली मारनी है, इसके अलावा कोई चीज साबित नहीं। तांत्रिक विधियां एक हिंदू से सादिर हुई और बेटी की बलि चढ़ाई और उसकी नाश को 3 दिन तक कीड़े खाते रहे और उसके बाद उसकी अंतिम विधियां रात के वक्त वो कैसा नामुराद बाप होगा, वो कैसा जालिम बाप होगा और वो कैसा बड़ा अब्बा होगा। वो मां सिसकती रही जिसको उसका आखिरी रूप भी देखने नहीं मिला। ये इस धरती पर होने वाला एक वाकया जुज़इया है जिसकी अरब में रोजाना मक्का शहर में हजारों यादें जिंदा की जाती थी। उस तड़पती हुई सिसकती हुई इंसानियत को कौन था वो जिसने रहमा उदैनहुम बना दिया? कौन था वो कि जिसने इंसाफ जोहलाए अरब को मकाम सहाबा तक पहुंचा दिया? कौन था वो कि 10 तड़पती हुई जानें अपने भाई पर पानी के पिए बगैर पीना पसंद न करके सब प्यासे माविकाई जिहाद में जान की बाजी दे दें और कोई पानी पीना पसंद न करे? वो हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसी से इंसानियत बनी। आज फिर से हमारे मुल्क में बहुत गलत फहमियों के शिकार बनकर एक तंजीम दूसरी तंजीम से बढ़कर, एक खूनरेज इंसान दूसरे खूनरेज इंसान से बढ़कर कभी हमारी आबरूओं की तरफ, कभी हमारे अमवाल की तरफ, कभी हमारे मुस्लिम जत्थू की तरफ, कभी हमारी इबादत गाहों की तरफ, कभी हमारे मसाजिद की तरफ, कभी हमारे मदारिस की तरफ और अब तो दरगाहों की तरफ इंतहाई खतरनाक गुस्सा आलूद निगाह किए हुए हैं। इन हालात में कुरान का चैलेंज क्या है? वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात लनस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा स्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। ये अरब के बद्दू जमीन पर जीने का हक नहीं रखते थे। हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल तालीमात के नतीजे में पूरे हिजाज मुकद्दस के वो ऐसे मालिक बन गए कि आज तक चमकती दमकती दुनिया अरब की मुकाबला नहीं कर सकते। अरे पूरी दुनिया मिलकर, पूरा वर्ल्ड मिलकर हरमैन शरीफैन के साउंड सिस्टम का बदल नहीं ला सकती है, तो वो कैसी पाकीज़ा हस्ती होगी, वो कैसी पाकीज़ा कौम होगी। पूरा वर्ल्ड मिलकर हरमैन की साउंड सिस्टम और उसका बदल नहीं ला सकती। खाली एक वही अरब की धरती थी जहां बेटियों पर ये मजालिम थे, लेकिन कुरान बहुत डंकी की चोट कहता है वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात लनस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा स्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। हजरत मूसा की कौम बनु इसराइल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नतीजे में फिरौन जैसे जालिम बादशाह और उसके जुल्म तशद्दुद से जो बनु इसराइल खेती में बैल गाड़े की जगह, बैलों की जगह हलों में जोती जाती हो, हाँ वही बनु इसराइल जिन्हें इंसानियत के जीने का कोई अधिकार नहीं था, वही बनु इसराइल जो गुलाम और लोंडों की तरह घरों में तिब्तियों की गुलामी करते थे। अल्लाह ने मिस्र छीन करके फिरौन से इनको मिस्र की सल्तनत का मालिक बनाया। ये कुरान का चैलेंज। लेकिन यही बनु इसराइल जब वापस बदले तो अल्लाह ताला ने जब फिस्क फुजूर इनमें आम हुआ, हजरत मूसा की तालीमात को नजरअंदाज किया, तौरेत के परखचे उड़ाए, तो फिर अल्लाह ने वापस मुसीबत डाली और बुख्त नस्र मुसल्लत किया। 70,000 बनु इसराइल को बैतुल मुकद्दस में गाजर मूली की तरह काटा और 70,000 बनु इसराइल को कैद करके उठा गया और जंजीरों में बांधा। और वक्त का पैगंबर दानियल मौजूद था
اور दानियाल कर मस्के कसी गई और हजरत दानियाल वक्त के नबी को भी जंजीरों में बांध करके जेल खाने में डाल दिया गया। हजरत दानियाल अफसोस करते थे, ऐ मेरी कौम, तुम भी मुसीबत में मुब्तला हुए और मुझे भी मुसीबत में मुब्तला किया, मेरी एक न सुनी, मेरी एक न मानी तुमने। अब जेल खाने में जाने के बाद कौम ने कहा, नबी जी भूल हो गई, जरा दुआ करो, और नबी का हाथ अल्लाह वापस नहीं करता है। कौम भी ऐसी थी, और नबी तो मां की ममता से कसम खुदा ताला की 99 दर्जा ज्यादा रहमदिल होता है। 99 दर्जा जो मां को खुदा ने ममता दी है, उससे 99 दर्जा ज्यादा नबी अपनी उम्मत के ऊपर शफीक और रहीम होता है। हजरत दानियल ने फिर दुआ की जेल खाने में। अल्लाह ताला ने बुख्त नस्र के मजालिम से दानियल के सदक़े में खुदा ने फिर जेलों से रहाई अता फरमाई। ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल लदीन मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम। हिंदुस्तान के मुसलमानों, घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह का धमकी की चोट कुरान में ऐलान है, वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम। इस्लाम का डंका बजेगा, इस्लाम कुल कायनात में बाकी रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इस्लाम और मुसलमानों को खत्म नहीं कर सकती। ये तो हो सकता है कि 30 करोड़ में से 10 करोड़ काम आ जाए, ये तो हो सकता है 30 करोड़ में से 5 करोड़ काम आ जाए, लेकिन इस सफाई हस्ती पर हमारे खात्मे के बाद दुनिया की कोई कौम भी सुकून के सांस नहीं ले सकती। वो दिन नहीं आएगा। अल्लाह का वादा है, वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम। अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है, और अल्लाह के पसंदीदा दीन में खुदा मुसलमानों को गलबा देकर रहेगा। आखिरी बात फरमाई, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। ये जो खौफ फैलाया हुआ है, अल्लाह उसको अमन में बदलेगा। यह अल्लाह का चैलेंज है, वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना। ये खौफ अमन में बदलेगा, जरूर भी जरूर बदलेगा। आखिरी बात, यअबुदूननी वला युशरिकून बी शैआ। दो शर्तें हैं। अल्लाह की इबादत मजबूती के साथ करनी पड़ेगी। यअबुदूननी वला युशरिकून बी शैआ। सारे धन फुतूर छोड़ने पड़ेंगे। शिर्क, असबाब शिर्क, कुफ्र, इन सारी चीजों से बचे रहेंगे। अल्लाह की तरफ से उम्मीद है, यकीनन हालात बदलेंगे, सिसक की इंसानियत सुकून के सांस लेगी। जो कुछ हो रहा है, मेरी बात इस पर खत्म हो गई वक्त, वरना मैंने दलाइल से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुस्तकिल दलाइल उतारे गए। अरब के बद्दू कोई मामूली नहीं थे, पैगंबर से बरजस्ता कह देते थे, आप अल्लाह के नबी हैं, ये करके बताओ, आप अल्लाह के नबी हैं, ये दिखा करके बताओ। फिर अल्लाह ताला ने वो दलाइल नबूवत पैगंबर को अता किए, लेकिन फिर आका की 23 साल मेहनत के नतीजे में एक जमात तैयार हुई, जिनको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद। वो जमात तैयार हो गई। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वो जमात तैयार हो गई जिसके बाबत कुरान ने कसमें खाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बिगड़े हुए हालात में हमें दूर अंदेशी, सब्र, इस्तिकामत, इस्तिक़लाल नसीब फरमाए। देखो, हालात में एक दूसरों का ताआवुन करना, मदद करना सीखें। अपने भाइयों को रोजगार के अंदर आगे बढ़ाएं, इनको तालीम में आगे बढ़ाएं, एक दूसरे की हेल्प और मदद करें। जहां तक हो सकता है बाहम मजहबी एतबार से मजहबी रवादारी की रियायत रखें। छोटी मोटी चीजों को दबा दें। इख्तिलाफ, खलफसार, झगड़े, फितने, फसाद, लड़ाइयां, ये मुसलमान को कभी ज़ेब नहीं देती है। इसकी पेशानी में ईमान का नूर समोया हुआ है, और जिसकी पेशानी में ईमान का नूर समोया हुआ हो
وہ کبھی ادھورا نہیں بنتا ہے، وہ کبھی چھچھیرےپن میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، وہ سب رقا کوہ استقلال ہوتا ہے۔ لہذا بگڑے ہوئی حالات میں دودھ اندیشی سے، یکجہتی سے، اور جب کبھی مخالف طاقت یا مخالف فرق یا مخالف جماعت اگر ہماری مصلحت سے کوئی غلط فائدہ اٹھانا چاہے تو اس وقت ایک مضبوط چٹان اور پہاڑ بن کر صبر اور استقامت اور استقلال کے ساتھ وہ جواب دیں کہ اس کی ماں کی چھٹی کا دودھ وہ بھی یاد کر لے، اور بھوشیہ میں کبھی بھی اس نور ایمان کی پیشانی کے مقابل بننا اس کو ہمت اور جرأت یہ پیدا ہی نہ ہو۔ اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ نبوی ارشادات اور نبوی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے عرب کے بدوؤں کو جس طریق سے انسانیت کا سبق دیا تھا، بھٹکی ہوئی کائنات کو روٹھے رب سے ملایا تھا، وہی طریقہ قیامت تک مؤثر رہے گا، اس کے مقابلے میں کوئی طریقہ کارگر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی سے عشق نصیب فرماوے، محبت نصیب فرماوے، اور تابعداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ دلائل نبوت پر تفصیلی بحث ہوگی۔ چند ضروری اعلانات ہیں۔ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں سیتامڑھی بہار سے مولانا تشریف لائے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر کے لیے للہ پیسوں کے ذریعے سے ضرور تعاون فرماتے جائیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے، مولانا ثاقب صاحب نوساری والے مانگرول میں منگل کے دن تشریف لا رہے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 8:45 بجے جامع مسجد میں ان کا بیان ہے، اور مستورات میں 18 اکتوبر منگل کے دن 2:45 بجے بیان گھاچی سماج کے ہال میں ہے، اور عصر کے بعد علماء حفاظ میں دارالعلوم حسنیہ میں جوڑ ہے۔ تیسرا اعلان یہ ہے، جامعہ کاشف العلوم میں بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد جلسہ تکمیل حفظ قرآن کریم ہے، جس میں مولانا محمد صاحب مظاہری دعا فرمائیں گے۔ ان تمام پروگراموں میں شرکت کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔